Hello everybody. I am just going to start Honeydew class 8 first lessons, that is the best Christmas present in the world, is written by Michael Moore Purgo. This story has three parts. It is very lengthy but interesting. Before starting the first part of the story, I am focusing the character of the story. The first character of this story was Jim McPherson. He was the captain of British regiment during the First World War. He leads British army against to German and United States army. He was very brave, courageous, kind and open-hearted person. He was very responsible towards to his job. Before this job, he was a school teacher at a school in Dorset, which is West England. He had a wife who loves very much. Second character of this story was Connie McPherson. She was a good lady. She was the wife of Captain Jim McPherson. He was fought against First World War to German and United States. Her wife loved him very much. When her husband go to First World War against to German and United States, she leads very tough life. Her home partially burnt to fire and now she was very old to wait her husband. Now third character of this story was Hans Wolf, was the leader of Germany army. He leads to Germany First World War against to British war. He was an orchestra before war and he was very friendly nature. Now fourth character of this story was Michael Moore Purgo. There are some dates or periods of time in the history of the world that are so significant that everyone knows and remembers them. The story you will read mentions one such dates and events, a war between the British and the German in 1914. Can you guess which war it was? दुनिया के इतिहास में कुछ तारीखें या अवधियां इतनी महत्वपूर्ण हैं कि हर कोई उन्हें जानता है और उन तारीखों और अवधियों को लर्न रखता है। यहाँ पर एक तारीख और एक अवधि का उल्लेख है कि 1914 में ब्रिटिश और जर्मनी के बीच जो युद्ध हुआ था वह विश्व का कौन सा युद्ध था। दिस इज ए क्वेश्चन फॉर टू स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स कमेंट करके आप इसका आंसर मुझे देंगे। Do you know which event the dates below refer to? क्या आप जानते हैं कि नीचे दी गई तारीखों कौन सी घटना बताती हैं? Now first is 4th July 1776, American Declarations of Independence. अमेरिका ने अपनी आज़ादी की घोषणा कर दी थी। 4 जुलाई सन 1776 में अमेरिका ने अपनी आज़ादी की घोषणा की थी। नाउ नेक्स्ट इज 17 दिसंबर 1903, विल्बस एंड ऑर्विले मेड द फर्स्ट फ्लाइट रिमेन इन द ईयर 12 seconds एंड गोज टू 120 फीट हाइट। विल्बस और ऑर्विले ने जो है पहला उड़ान या जहाज बनाया था जो कि हवा में जो है 12 सेकंड रहे और 120 फुट हाइट तक गए। Now next is 6 August 1945. An atomic bomb dropped on Hiroshima in Japan on this day by America. अमेरिका के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में हिरोशिमा नामक स्थान पर एटम बम गिराया गया था, इसलिए 6 अगस्त 1945 फेमस है। Now next is 30 जनवरी 1948. 30 January 1948 relate to the event in India that day, assassinations of Mahatma Gandhi.
30 जनवरी सन 1948 को महात्मा गांधी का मर्डर हुआ था। नाउ नेक्स्ट इज 12 April 1961. Yuri Gagarin became the first human to orbit the Earth. Now next is 20 July 1969. Neil Armstrong became the first human to set foot on the moon. Neil Armstrong पहले व्यक्ति हुए जिन्होंने चंद्रमा पर अपने पैर रखे। I spotted in a junk shop in Bridport a roll-top desk. The man said it was early 19th century and oak. एक बार आर्थर एक कबाड़ी की दुकान पर गए जो ब्रिडपोर्ट में स्थित थी। वहां उन्होंने एक ऊपर से घूमने वाली मेज देखी। The man said it was early 19th century and oak. उस आदमी ने कहा कि यह 19 सेंचुरी से पहले की हैं और ओक की लकड़ी की बनी हुई थी। I had wanted one but they were far too expensive. मैं उनमें से एक को खरीदना चाहता था लेकिन वो बहुत महंगी थी। This one was in bad conditions. The roll top in several pieces, one legs clumsily mended. उनमें से एक वर्स कंडीशन में थी। बैड कंडीशन मीन्स वर्स कंडीशन, वर्स कंडीशन मीन्स खराब कंडीशन में। एक जो है वर्स कंडीशन में थी, उसका जो ऊपर से घूमने वाला हिस्सा था वो कई हिस्सों में विभक्त था। वन लेग क्लम्सली मेंडेड, और उसका एक पैर भी जो है ठीक नहीं था। स्कॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड, उस पे जो है एक हिस्से में जलने के दाग थे। इट वॉज गोइंग फॉर लिटिल मनी, आई थॉट आई कुड स्टोर इट। वह बहुत सस्ती मिल रही थी। आई थॉट आई कुड स्टोर इट, मैंने सोचा कि मैं इसकी मरम्मत कर सकता था। इट वुड बी अ रिस्क, अ चैलेंज, बट आई हैड टू हैव इट। यह एक जोखिम होगा, यह एक चुनौती होगी, बट आई हैड टू हैव इट, लेकिन मैंने इसको स्वीकार किया। आई पेड टू मैन एंड बाउट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैरेज। मैंने उस व्यक्ति को उस मेज का भुगतान किया और उसको अपने गैरेज के पीछे वाले वर्क रूम में ले आया। आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन द क्रिसमस ईव, मैंने उस पर जो है क्रिसमस की पूर्व संध्या पर कार्य करना प्रारंभ किया। आई रिमूव द रोल टॉप कंप्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉवर्स, मैंने उस डेस्क के ऊपर के घूमने वाले हिस्से को पूरा हटाया। एंड पुल्ड आउट द ड्रॉवर्स, और उसके दराजों को खींचा। द बैनियर had lifted almost everywhere, उसके प्रत्येक तरफ एक पतली सी प्लास्टिक की सेप्टेड वॉल जैसी चिपकी हुई थी। इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी, वह पानी से खराब हुआ था। Both fire and water clearly taken their toll on this desk. यह स्पष्ट था कि उस मेज पर पानी और आग के जलने के निशान पड़े हुए थे। The last drawer was stuck fast. उसका आखिरी दराज फंस गया। I tried all I could to easy it out gently. मैंने उसको आराम से बाहर निकालने की कोशिश की, but in the end I used brute force. लेकिन वह बाहर नहीं निकला। and I used brute force, फिर मैंने जोर से उसमें ताकत लगाई। I struck it sharply with the side of my fist and the drawer flew open to reveal a shallow space underneath a secret drawer. जब वो बाहर नहीं निकला तो मैंने उस पर एक ब्रूट फोर्स लगाया, मैंने जोर से ताकत लगाई और एक
फिस्ट मीन्स होता है मुट्ठी, एक मुट्ठी की मारी। जब मैंने उस पर एक मुट्ठी की मारी तो वह जो है एक साइड से उछला हुआ मानी खुला। What I see there, फिर मैंने वहां क्या देखा? I see there was a secret drawer, मैंने देखा कि वहां एक गुप्त दराज है। There was something in there, वहां भी कुछ है। I reached in and took out a small black tin box, मैंने वहां अपना हाथ रखा और उस छोटे से टिन के बॉक्स को बाहर खींचा। What I see there? I see sellotape, to the top of it was a piece of lined note paper, मैंने देखा कि उस बॉक्स के ऊपर से सेलो टेप से एक नोट पेपर चिपका रखा है। एंड रिटर्न ऑन इट इन सेकी हैंड राइटिंग, और उसमें कांपते हुए, सेकी मीन्स कांपते हुए, हैंड राइटिंग मानी हस्तलेख में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? व्हाट जिम्स लास्ट लेटर रिसीव जनवरी 25, 1915, उसमें लिखा हुआ था कि जिम्स का यह अंतिम पत्र उसे 25 जनवरी 1915 को प्राप्त हुआ। टू बी बरीड विद मी व्हेन द टाइम कम्स, उसमें लिखा हुआ था कि इस पत्र को मेरी कब्र में दफना देना। आई न्यू एज आई डिड इट दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स, मैं समझ गया था कि मैंने इस बॉक्स को खोल के इस दराज से बॉक्स को निकालकर गलती की। बट क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रबल्स, इट यूजुअली डज, लेकिन मेरी उत्सुकता ने मुझे न निकालने से रोक दिया। इनसाइड द बॉक्स देयर वॉज एन इनवलप, उस बॉक्स के अंदर एक इनवलप था। द एड्रेस रीड, उसमें एड्रेस लिखा हुआ था। मैंने एड्रेस पढ़ा, मिस्टर जिम मैकफरसन 12 कॉपर ब्रिचेस ब्रिटपोर्ट डोरसेट, उसमें ये एड्रेस लिखा हुआ था। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट, मैंने उस पत्र को निकाला और फिर उसको अनफोल्डेड कर दिया। इट वॉज रिटन इन द पेंसिल एंड डेटेड एट द टॉप, उस पत्र के ऊपर से पेंसिल से डेट लिखी थी। क्या डेट थी? व्हाट दिसंबर 26, 1914, यानी कि जो 25 डे को जो क्रिसमस डे मनाया जाता है उसके नेक्स्ट डे का लिखा हुआ जिम मैकफरसन का वो लेटर था, जो कि जो है उसकी वाइफ को कब मिला था? 15 जनवरी सन 1915 को, जो लिखा गया था दिसंबर 26, 1914 को। तो नाउ this is the first part of this lesson. Student, I have given you assignment for homework as a first. सबसे पहले आप इस पूरे चैप्टर को ध्यान से समझेंगे, इस वीडियो को सुनेंगे, समझेंगे, और जिन जो इसमें डिफिकल्ट वर्ड्स आए हैं उसको अपनी नोटबुक पे लिख लेंगे। और स्टूडेंट, मेरी आपसे एक आपके लिए एक होमवर्क और भी है कि आप कमेंट भी लिखेंगे मुझे, और यदि आपको ये चैनल अच्छा लगता है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में जो है लाइक और शेयर भी कर लेंगे, जिससे कि जो भी वीडियो मैं बनाऊं वो आपको उसकी सूचना मिल जाए और आप उस वीडियो को फिर उसको देख सकें। और देन थैंक यू सो मच।